Good morning, students. Myself, Meenal Murhekar, welcomes you all in the online tutorial of Shri Eknath Rao Khadse Talent School, Muktainagar. Um, since we have completed 2 chapters from science, now we are going to learn about the third chapter, that is synthetic fibers and plastic. Right? So, in previous classes, what we have learned in previous classes, we have learned about natural fibers. Okay, natural fibers. In 6th class, we have learned about the fibers which are obtained from plants, while in 7th class, we have learned about the fibers which are obtained from animals. So, plant fibers are what? Cotton, jute, linen. These are what? These are the fibers which we are obtaining from plants, while the animal fibers are what? Wool, silk. Okay, but the drawback of natural fiber is that they are cheap. क्योंकि what is happening here कि when we are obtaining natural fiber from natural animals and plants, what we are doing, we are harming the animals and our means our environment, right? So means in each case what we are doing, we are destroying, we are somewhere harming the animals and the plants too. That's why the scientists find a need to create that fibers in laboratories, and they have named that fibers as synthetic fibers. Synthetic means man-made. Okay, so now here in this chapter we are going to learn about the fibers which are man-made in nature. So basically, see here, you have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from the plants or animals. The synthetic fibers, on the other hand, are man-made by human beings, right? So that is why these are called synthetic or man-made fibers, right? So see here, what are synthetic fibers? आपने देखा होगा नेकलेस की जो बीड्स होती हैं यहाँ पर, सी हियर, एंड दिस पेपर क्लिप्स आर, दीज आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ व्हाट? स्मॉल स्मॉल, दीज आर अरेंज्ड इन form of a long chain. So in this similar manner, here in beads, here in the necklace, what is happening, these small beads are arranged in a form to form a long chain like structure, while here paper pins are arranged to form a thread like structure. So synthetic fibers are also what? Synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. So कैसे हमें synthetic fiber मिलता है? कुछ जो chemical substances होते हैं उन्हें हम what we used to do with them, we arrange them in the form of long chain so that they can combine and form a large single unit called polymer. What we call them? We call them a polymer. So the word polymer comes from 2 Greek words. क्या कैसे बना पॉलीमर वर्ड? पॉली मीन्स बहुत सारा, many, and mer meaning parts. So when small parts are arranged in a way to form a long chain, that is known as what? The long chain of a single unit is known as what? Polymer. Okay, so polymer is made of many repeating units. Is it clear to all of you? Now polymer can also occur in nature too. कैसे? Cotton, for example, cotton is a polymer called cellulose, and cellulose is made up of large number of glucose unit. आपने सुना होगा कॉटन जो है, कॉटन बना होता है सेल्यूलोज नाम के केमिकल आप कह सकते हैं, जैसे ग्लूकोज जो होता है, तो वो जो सेल्यूलोज होता है, वो सेल्यूलोज किससे मिलके बना होता है? दैट सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. ओके, सो उसे भी कहा जा सकता है, जैसे ग्लूकोज जो सबसे स्मॉल पार्टिकल कह लीजिए आप, स्मॉल यूनिट कह लीजिए, और ग्लूकोज जब अरेंज होता है, बहुत बड़ी जब चेन उसकी बन जाती है, उससे हमें क्या मिलता है? फिर सेल्यूलोज मिलता है, राइट? सो ये भी एक पॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया. नाउ अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं? तो सबसे पहला नाम आता है रेयॉन का. रेयॉन क्या होता है?
आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि हमें सिल्क जो है, सिल्क एनिमल फाइबर है और वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है। और आपने देखा ही होगा कितना फाइन होता है वो क्लॉथ, और उसका जो टेक्सचर होता है वो कितना अच्छा होता है। तो क्या था कि चाइना में सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन सबसे पहले हुआ करता था, और चाइना ने इस चीज़ को सीक्रेट बना के रखा कई सालों तक, ठीक है। पर फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद सबको लगा, सारी कंट्रीज़ में लगा कि हमें भी ये फाइबर हमारे पास भी होना चाहिए, तो आर्टिफिशियली जो है सिल्क को बनाया जाने लगा, ठीक है। सिल्क नाउअडेज silk were artificially prepared. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having similar properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. क्या हुआ यहाँ पर कि आर्टिफिशियल जो सिल्क बना लेबोरेटरी में, ऐसा फाइबर बना लेबोरेटरी में जो सिल्क जैसा हो, सिल्क जैसा उसमें सब टेक्सचर हो उसका, और उसको केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया। किसकी केमिकल ट्रीटमेंट से? बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड का पल्प, वुड पल्प छाल जो होती है वुड की, उससे मिलके बनाया, उसकी केमिकल ट्रीटमेंट से। और इस फाइबर को क्या नाम दिया हमने? रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क हमने नाम दिया। नाउ ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स से मिल रहा है क्योंकि वुड पल्प है और वो तो नेचुरल थिंग ही है, बट क्या हो रहा है कि फिर भी उसे मैनमेड फाइबर कहा जाता है क्योंकि उसे हमें डायरेक्टली फाइबर नहीं मिल रहा है, उसकी वुड पल्प से हमें फाइबर बनाना पड़ता है, ठीक है। सो ये जो होता है, ये फाइबर जो होता है ये बहुत चीप होता है देन सिल्क, सस्ता होता है बहुत, और सिल्क जैसे ही इसको वूव किया जा सकता है, वूवन किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसे भी क्या करते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसे भी हम बहुत सारे कलर्स में उसको डाई कर सकते हैं, और फिर इससे और भी अलग फाइबर्स के साथ मिक्स करके अलग चीज़ें बना सकते हैं। जैसे रेयॉन इज़ मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स्ड विथ वुल टू मेक कारपेट्स। जब कॉटन के साथ रेयॉन मिक्स होता है तो बेडशीट के फॉर्म में यूज़ होता है, और जब वुल के साथ मिक्स होता है तो कारपेट्स उससे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए कारपेट, ये किससे बना है? आर्टिफिशियल रेयॉन से बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए, देख लिया हमने रेयॉन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, विल टॉक अबाउट नेक्स्ट फाइबर इज नायलॉन। So here see, nylon is another man-made fiber in 1931, right? In 1931 it was made without using any natural raw material from plant or animal. ये ऐसे फाइबर हैं जिनमें जो मैन-मेड फाइबर बना कम्प्लीटली, और इसमें कुछ भी नेचुरल चीज़ मीन्स प्लांट्स एज अ सोर्स और एनिमल एज अ सोर्स कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। इसमें डायरेक्टली क्या यूज़ हुआ, यहाँ पर डायरेक्टली क्या यूज़ किया गया? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर. It was the first fully synthetic fiber. This question will be get asked in exam, that which fiber was fully synthetic fiber. So what is the answer of this? Nylon is the fiber which is completely synthetic fiber. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत, इलास्टिसिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, इलास्टिक होते हैं, मीन्स अगर कुछ भी स्ट्रेच भी आया तो टूटेगा नहीं, इट कैन बियर दैट प्रेशर टू। सो इट वॉज लश्चरस एंड ईजी टू वॉश। लश्चरस मीन्स थोड़ा शाइनी होता है, और इससे हम धो भी सकते हैं। नायलॉन से अब क्या क्या बनता है? वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट्स, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम नायलॉन से बना सकते हैं, ओके।
सो देखो यहाँ पर लिखा है, इज नाइलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नाइलॉन पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। क्या हम उससे पैराशूट्स और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स भी बना सकते हैं? तो यस, हम नाइलॉन से बना सकते हैं। सो नाइलॉन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट, also used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. ठीक है, एक स्टील की वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नाइलॉन फाइबर, राइट? नाउ सी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. क्या होता है पॉलिस्टर? आपने सुना होगा, हम जो शर्ट्स पहनते हैं, कुछ क्लोथ्स पहनते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं? पॉलिस्टर से मिलके बने होते हैं। क्यों पॉलिस्टर का यूज़ होता है? क्योंकि पॉलिस्टर की जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। रिंकल्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिंकल्स? मीन्स ऐसे क्रश करके, आपने देखा होगा कॉटन क्लोथ को, इफ़ यू क्रश लाइक दिस, सो व्हाट विल हैपन, इट विल means the lines will be seen on that cloth, but when we wrink that polyester cloth, it will not show wrinkles, lines on it. So that's why many people prefer polyester over cotton. So it remains crisp and easy to wash, so it is quite suitable for making dress materials. You have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Okay, now terylene is a popular polyester. Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी यार्न। ठीक है, तो मेनली टेरिलीन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ सी हियर, माई मदर ऑलवेज बाय PET बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज़। आपने सुना होगा हमारी मम्मी घर में क्या करती हैं, पेट जो है पेट की बॉटल्स यूज़ करती हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो व्हाट इज़ दैट पेट? Okay, so now we are going to see this PET is what. See here, PET, full form of PET is polyethylene terephthalate. What is it? Polyethylene terephthalate is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ पॉलिस्टर। कौन कौन सी चीज़ें और पॉलिस्टर से बनी हैं वो हमें बताना है। सो हियर PET इज़ व्हाट? PET इज़ पॉलीइथाइलिन टेट्राफ्थैलेट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ polyester. Now see polyester, poly means many, esters are actually the chemical compounds which you will know, which you will learn in your higher classes. Okay, so esters are the chemicals which give fruity smells. They have fruity smells. So fabrics are sold by the name of the fibers which are made from polyesters are named like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton, right? Polywool is a mixture of polyester and wool. So now see here, we were स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स ऑफ ब्लैंकेट्स इन विंटर। हम स्वेटर्स और शॉल यूज़ करते हैं विंटर्स में। सो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। जो है वो नेचुरल वुल से ऑब्टेन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल वुल वो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। दैट्स वाई these are prepared from another type of synthetic fibers called acrylic. ठीक है, now see here, the wool obtained from the natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap.
They are available in variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. Means cheap होते हैं synthetic fibers. That's why they are more popular than natural fibers. Okay, समझ में आया? एक्राइलिक क्या है? जिससे हम वुल बनाते हैं, ठीक है। जो सिंथेटिक वुल होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्राइलिक कहेंगे। जैसे सिंथेटिक सिल्क को हमने क्या नाम दिया? रेयॉन नाम दिया। वैसे ही हमने सिंथेटिक वुल को क्या नाम दिया? एक्राइलिक नाम दिया, ठीक है। नाउ सी हियर, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आपने कभी जला के देखा है सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर को? ट्राई कीजिएगा कभी, छोटा सा पीस लीजिएगा नेचुरल फाइबर का और सिंथेटिक फाइबर का और उसे जला कर देखिएगा। तो क्या होगा, जो सिंथेटिक फाइबर होगा, सिंथेटिक फाइबर जो है, जैसे ही उन पे हीट लगेगी क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट्स ऑन हीटिंग, वो मेल्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ये क्या है? डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर्स का, कि ये जो है ईजिली हीट को कैच करते हैं। सो इस वजह से थोड़ा सा जब हम सिंथेटिक फाइबर्स को हम पहनते हैं, पॉलिस्टर वगैरह के जब हम कपड़े पहनते हैं, तो हमें डायरेक्ट फायर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ईजिली फायर को कैच करते हैं। ओके, नाउ सी हियर, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये बहुत सारी प्रोसेसेस से बनते हैं, जिनमें रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है वो पेट्रोलियम ओरिजिन का होता है। सो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स भी कहते हैं। ओके, ये इसको डेफिनेशन को आप नोटबुक में लिखेंगे और बिल्कुल लर्न करेंगे। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ सी हियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। आपने देखा होगा कि हम रेनी सीजन में जो है अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, देखा है ना? तो वो किससे मिलके बनी होती है? दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे? हमने अम्ब्रेला ही क्यों यूज़ किया, और अम्ब्रेला का जो फैब्रिक है वो वही क्यों यूज़ करके हम अम्ब्रेला बनाते हैं? ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में कई बार आते हैं। तो ऐसा क्यों? ये जो अम्ब्रेला होती है, ये अम्ब्रेला सिंथेटिक फाइबर से मिलके बनी होती है, नेचुरल फाइबर से मिलकर नहीं बनी होती है, सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बनी होती है। सो क्यों नेचुरल फाइबर यूज़ करते हैं हम? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर possess unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly and durable and less expensive, readily available and easy to maintain, perform the activity and learn for yourself। ठीक है, क्या होता है, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके कारण ये क्या करते हैं? जल्दी सूख जाते हैं, और जल्दी सूख जाते हैं, वो ड्यूरेबल होते हैं, बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होते, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे नहीं होते, और कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और उसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत इजी होता है। मीन्स ऐसा नहीं कि इसमें फिर प्लांट सोर्स है तो इसे फिर कीड़े लगेंगे या ये ख़राब होगा, ये सारी चीज़ें इनके साथ नहीं होती है, इसलिए ये इजीली हमें मिल भी जाते हैं, लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं, जल्दी सूख भी जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से हम सिंथेटिक फाइबर्स को प्रेफर करते हैं अम्ब्रेला को बनाने में। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक आपने सुना होगा? येस, plastic is also a polymer. You must be familiar with many plastic articles used every day. देखा होगा ना प्लास्टिक? अभी जैसे आपने देखा होगा घर पर चेयर जो बनी है, आपकी क्लॉक जो बनी है, और डेस्क जो बनी है आपकी, और डोर्स वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किससे मिलके बनी होती है? प्लास्टिक से मिलके। आपकी बॉटल्स, टिफ़िन, जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं, पेन, ये सारी चीज़ें किससे बनी हैं?
प्लास्टिक से बनी है। तो आज हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। सो प्लास्टिक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्लास्टिक इज़ व्हाट? प्लास्टिक इज़ जनरली अ पॉलीमर। सी हियर, plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement of units. अब प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक के भी छोटी छोटी यूनिट्स को अरेंज किया जाता है लंबी चेन्स में, पर प्लास्टिक क्या होता है, वो एक ही सेम चेन में अवेलेबल नहीं होता, जैसे एक के बाद एक ऐसा नहीं होता, वो बीच में से कहीं से भी किसी और से भी लिंक होता है, क्रॉसली भी वो लिंक्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर है यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये लीनियर अरेंजमेंट है प्लास्टिक का, मीन्स एक सिंगल लाइन में जो अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। और ये देखो जो इंटरलिंक्ड है और नीचे भी लिंक्ड अप होते जा रहा है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? क्रॉस लिंक्ड। ओके, सो इस तरीके से प्लास्टिक जो है वो अरेंज होता है, प्लास्टिक की स्मॉल यूनिट्स। नाउ देखिए, plastic articles are available in all possible shapes, sizes. You can see in figure 3.7. See here, सब शेप में प्लास्टिक हमें मिलता है। So plastic can be recycled, reused, recolored, melted, rolled into sheets or made into wire. That is why it finds such a variety of uses. क्या होता है, प्लास्टिक जो है उसको रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब ख़राब हो गया कोई चीज़ तो उसे वापस मोल्ड करके हम नई चीज़ बना सकते हैं, उसे रीयूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ में बनाने के लिए, उसको वापस से कलर करके नया कर सकते हैं, ठीक है, उसको मेल्ट करके उसको शीट्स में नए शीट्स के फॉर्म में बना सकते हैं, उससे वायर्स बनाई जा सकती हैं। इसलिए प्लास्टिक जो है उस वह बहुत सारी वैरायटी में हमारे पास अवेलेबल होता है। नाउ सी, प्लास्टिक का एक टाइप देखेंगे हम, दैट इज़ पॉलीथीन। पॉलीथीन आपने सुना होगा, पॉलीइथीन, पॉली मीन्स बहुत सारा, इथिन भी एक केमिकल कंपाउंड है, जैसे हमने पहले आगे देखा ईस्टर, वैसे ही इथिन भी एक केमिकल कंपाउंड है जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो ये जो इथिन है, पॉलीइथीन जो है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। ये एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली प्लास्टिक बैग्स। जो आपने प्लास्टिक बैग्स बनती है, कैरी बैग्स जिसे हम कहते हैं, देखा होगा ना, उसे हम पॉलीथीन कहते हैं, तो वो भी प्लास्टिक, इस पॉलीथीन प्लास्टिक से वो बनी होती है। नाउ अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लास्टिक के टाइप्स, किस किस टाइप का प्लास्टिक होता है। अब आपने घर पर देखा होगा कि एक टाइप का प्लास्टिक ऐसा होता है कि जब हम उसे हीट देते हैं, जब उसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो अपना शेप चेंज करता है, या कभी कभी हम उसे ठोकते हैं, ज़्यादा कुटते हैं तो क्या होता है, वो टूट फूट भी जाता है। सो यू विल ऑब्जर्व सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड ईजीली विच वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड। कोई ईजीली बेंड हो जाता है और कोई बेंड भी नहीं होता है। व्हेन वी एड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बॉटल इट गेट डिफॉर्म। जब हम प्लास्टिक की जो लोकल बिस्लरी की बॉटल आती है उसको आपने कभी गर्म पानी में डाल के देखा है? ट्राई कीजिएगा एक बार। इट गेट्स डिफॉर्म, वो उसका जो शेप है वो ख़राब हो जाता है। तो सच प्लास्टिक, सी हियर, such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. ऐसा प्लास्टिक जो easily deform हो जाता है, जो अपना शेप चेंज कर लेता है हीटिंग पे और बेंड करने पे easily बेंड हो जाता है, ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। सो क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। और ऐसा प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या होते हैं? पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन देखा होगा, पॉलीथीन अपनी कैरी बैग्स जो हम यूज़ करते हैं इजीली क्रश हो जाती है और उसको शेप में भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हीट करेंगे तो आपने कभी देखा है, ट्राई करके देखा है, पॉलीथीन को जब आप हीट करते हैं तो ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। देखिएगा कभी ट्राई करके, बट बहुत सेफली आप इसको ट्राई करेंगे, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। सो these are used for manufacturing toys,
कॉन्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। ये जो प्लास्टिक है ये टॉयज़ के मैन्युफैक्चरिंग में, कंघे बनाने के और कुछ कंटेनर्स बनाने के लिए यूज़ हम करते हैं। और वहीं जो दूसरे टाइप का अब हम देखते हैं दूसरे टाइप का प्लास्टिक। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग। क्या होता है, दूसरा जो टाइप का होता है प्लास्टिक, वो क्या होता है, हम उसको कितना भी मोल्ड कर लें वो सॉफ्ट नहीं होता है हीटिंग पे। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो हार्ड प्लास्टिक होता है, जो मोल्ड नहीं होता है, ऐसे प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग, एक बार सेट हो गया तो हो गया, फिर उसको आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक हमने पहले पढ़ा, थर्मो मीन्स हीट, और जो हीट के देने से चेंज हो जाए वो थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग मीन्स जो कितनी भी हीट दे दो वो अपना शेप नहीं चेंज करेगा, इसे हम क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर व्हाट, बेसिकली बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट is a poor conductor of, see here, bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils etc. bakelite क्या होता है, bakelite किस लिए यूज़ करते हैं हम, जो ये जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मीन्स अगर इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इस bakelite से तो हमें शॉक नहीं लगता है, ठीक है। इसलिए ये जो स्विच बोर्ड्स होते हैं हमारे घरों में बने हुए, ये किससे मिलके बने होते हैं, bakelite से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब अनदर एग्जाम्पल जो है, अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ मेलामाइन। मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। क्या होता है, जैसे हमने देखा बेकेलाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, वैसे ही मेलामाइन जो होता है दैट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो है हीट को ईजीली टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम फ्लोर टाइल भी बनाते हैं, किचन वेयर बनाते हैं, फैब्रिक भी इससे बनाते हैं विच रेजिस्ट फायर, जो आग जिनमें ना लगे। किचन में भी जो चीज़ें होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वो सब किचन वेयर जो है, कुछ बर्तन भी जो है वो मेलामाइन के बनते हैं ताकि वो इजीली हीट को कैप्चर ना करे, ठीक है। सो ये देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं जो ये सब चीज़ों से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई है। देखिए स्विच बोर्ड्स है, थाली है, ये सारी चीज़ें जो है कैप्चर नहीं करती है, और ये थर्मोप्लास्टिक से। कंटेनर, वायर्स, वायर का जो इंसुलेशन है दैट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास कितना सारा प्लास्टिक है, तो क्यों प्लास्टिक हम इतना सारा यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं प्लास्टिक के और क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ने वाले अब हम देखेंगे कि प्लास्टिक ही क्यों, प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, हर कोई प्लास्टिक को ही क्यों चूज़ करता है मटेरियल्स के लिए। अब आपने देखा होगा कि हमारे घर में छोटी से छोटी चीज़ भी प्लास्टिक से मिलके बनी होगी। अगर दूध आ रहा है, दूध की बोतल प्लास्टिक की है, अचार के लिए कोई बरनी है, बरनी प्लास्टिक से बनी होगी। अगर हम बाहर से कुछ खरीद के ला रहे हैं फास्ट फूड, दैट इज़ कवर्ड इन प्लास्टिक। सो this is because of their lightweight, lower price and good strength and easy handling। क्यों ऐसा, क्योंकि वो उनका जो वेट होता है वो बहुत लाइट होता है, प्राइस भी उनकी बहुत कम होती है, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजीली हैंडलिंग मीन्स वो जल्दी टूटते फूटते नहीं हैं और ईजीली हम उन्हें कैरी कर सकते हैं। दैट्स वाई वी यूज़ प्लास्टिक मोर एंड मोर। Being lighter as compared to metal, plastic are used in cars, aircraft and spacecraft too। ठीक है, ये cars में, aircraft में भी यूज़ की जाती है। So the list is endless if we start counting the articles like slippers, furniture, decoration pieces etc. All these things are made up of what? These are made up of plastics only. So now we are going to discuss the characteristics properties of plastic. See, first property of plastic is non-reactive, right?
you have seen in many cases when we use metal easily get rusted. क्या होता है, आयरन की कोई चीज़ लेंगे उसमें जंग लग जाता है, फिर वो कोरोड हो जाता है कभी कभी. सो यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर. ठीक है. But plastic do not react with water and air. They are not corrode easily. That is why they are used to store various kinds of materials including many chemicals. इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होते हैं एयर और वाटर से और मॉइस्चर से. इसलिए क्या होता है, ये नॉन रिएक्टिव कहलाते हैं और हम इसमें कुछ भी चीज़ों को रख सकते हैं. इवन हम इसमें केमिकल्स को भी स्टोर कर सकते हैं, केमिकल्स भी ख़राब नहीं होते. नाउ प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. येस, प्लास्टिक जो होते हैं वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं. सी यहाँ पर देखिए, since plastic is very light, strong and durable and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. क्या होता है, प्लास्टिक बहुत लाइट वेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी टूटता नहीं है, और ड्यूरेबल होता है, बहुत दिनों तक चलता है. इसलिए, और वो इजीली मोल्ड भी हो जाता है, उसको एक शेप से दूसरे शेप में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं. इसलिए वेरियस पर्पसेस के लिए हम प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. Now see here, plastic are generally cheaper than metal. metal से सस्ते होते हैं. They are widely used in industry and for household articles. इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं और household articles मतलब घर में लगने वाली चीज़ों में भी प्लास्टिक यूज़ होता है. Now what you have to do? You have to make a list of different kinds of plastic containers that you use in your daily life. आप कहाँ कहाँ पे प्लास्टिक यूज़ करते हो डेली लाइफ में. This is what you have to make a list of and you have to show this to me. Okay, this is your homework for today. Now the third property is plastic are poor conductor of पुअर कंडक्टर्स. प्लास्टिक जो हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं. किस चीज़ के, हमने अभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स में पढ़ा कि प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. सो इसलिए दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग. जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं अंदर तो मेटल की होती हैं, बट उसका जो कवरिंग होता है वो प्लास्टिक से मिलके बना होता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं. इसलिए जो हैंडल्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स, ये जो सारी चीज़ें वो किससे मिलके बनी होती है, प्लास्टिक से मिलके बनी होती है. एज मैंशनड अबाउ, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक. जो फ्राइंग पैन्स होते हैं, तवा वगैरह, इन सब के हैंडल्स भी प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं इसीलिए. ठीक है. नाउ अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्लास्टिक का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़. हेल्थ केयर इंडस्ट्री मीन्स हॉस्पिटल और उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं. आपने देखा होगा प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स. टैबलेट्स जो पैक होती है वो भी प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक होती है. थ्रेड यूजेस फॉर स्टिचिंग वोन्स. जब हमें कुछ कट फट जाता है तो यू नो दिस थिंग दैट उसे स्टिच किया जाता है, तो वो जो थ्रेड होता है जिससे हमारी बॉडी स्टिच की जाती है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक. जो सीरीन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, जो ग्लव्स हैं जो डॉक्टर्स पहनते हैं, वो सारी चीज़ें भी किससे, जो मेडिकल सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब किससे बने हैं, प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर्स जो हैं यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन में जो यूज़ करते हैं वो भी किससे मिलके बने होते हैं, वो भी मिलके बने होते हैं आपके प्लास्टिक से. क्यों? क्योंकि वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं. द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. ठीक है. नाउ सी टेफ्लॉन. टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. ऐसा प्लास्टिक है टेफ्लॉन जिसमें ऑयल और पानी नहीं लगता है. इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. आपने नॉन स्टिक बर्तन देखे होंगे, नॉन स्टिक कुकवेयर्स, तो उसमें क्या होता है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जिसकी वजह से उसमें खाना स्टिक नहीं होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट यूज़ देखिए,
फायर प्रूफ प्लास्टिक, कुछ जो प्लास्टिक होते हैं वो आजकल फायर प्रूफ भी होते हैं, जैसे ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजीली, जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो इजीली जो है फायर को कैच करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा. बट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेजिस्टेंट. क्या होता है, जो फायरमैन होता है, इलेक्ट्रीशियन यू जो कह सकते हैं आप, और जो फायरमैन होते हैं जो आग में अंदर जाके आग बुझाते हैं हमारे लिए, उनकी जो ड्रेसेस होती हैं वो भी प्लास्टिक से मिलके बनी होती है. और वो जो स्पेशल टाइप का प्लास्टिक जो यूज़ होता है वो मेलामाइन प्लास्टिक का बना होता है. हमने पढ़ा ना अभी मेलामाइन इज़ हीट प्रूफ, सो इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ, हीट प्रूफ, तो दैट्स वाई मेलामाइन से वो मिलके बना होता है उनकी ड्रेसेस. नाउ अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट. प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है या बेनिफिशियल है. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सारी चीज़ें आजकल हमें मार्केट में जो भी अवेलेबल हैं दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स ओनली. दैट इज़ द रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. छोटी से छोटी चीज़ जो हम खरीदते हैं वो सब प्लास्टिक से मिलके बनी होती है. जो कवर करके हमें मिलती है वो प्लास्टिक में कवर करके मिलती होती है. तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक डे टू डे लाइफ में खरीदते हैं, और घर पर लाकर क्या होता है, वो प्लास्टिक एक्यूमुलेट होते ही जाता है, और फाइनली क्या करते हैं हम, वो सब जाके डस्टबिन में डालते हैं ना, गार्बेज में जाता है वो सब. पर क्या होता है, क्या ये डिस्पोजेबल होता है ये मटेरियल? क्या जब वो गार्बेज में जाता है तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी है? ये हम अब पढ़ने वाले हैं. अ मटेरियल, पहले हम दो डेफिनेशंस देखेंगे. जस्ट सी हियर, a material which get decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. ये हमने पढ़ा है कि ऐसा मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेसेस से, जिससे बैक्टीरिया का एक्शन हो या ये सारी चीज़ों से जब वो डिग्रेड हो जाए, जब बायो मतलब जो नेचुरली जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से वो डिकम्पोज हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. और वाइस वर्सा, इसका जस्ट उल्टा है, अ मटेरियल विच नॉट ईजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचुरल प्रोसेसेस से डिकम्पोज डिजनरेट नहीं होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें बताया है कि कौन कौन सी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है और कौन कौन सी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे. देखिए, सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल है. पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, पेपर, क्लॉथ, वुड, वुलन क्लॉथ, ये सब बायोडिग्रेडेबल है, और इनका अब टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड, ये कितने टाइम में डिग्रेड होती हैं. नाउ ये जो मेटल्स होते हैं, प्लास्टिक होती है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और ये कम से कम 500 साल तक एज इट इज़ रहती हैं, बहुत सालों तक, और ये फिर हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कॉज करती हैं. See here. Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. उसको बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, इसलिए environment friendly वो नहीं होता है. Beside, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not completely burn easily. उसका जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो भी बहुत स्लो है, और ये जो है ईज़िली बर्न भी नहीं होता है. कितना भी जला लिया आपने उसको तो भी उसका जो कुछ अमाउंट है, कुछ पार्टिकल्स हैं, वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेंगे ही. सो इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स. जब हम उसको बर्न करते हैं प्लास्टिक को, तो उसमें से कुछ फ्यूम्स निकलती हैं, पॉइजनस फ्यूम्स, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एयर पॉल्यूटेंट के जैसे काम करती है, और वो पॉल्यूशन कॉज करती हैं. हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? आपने देखा होगा कि गार्बेज में भी हम बहुत सारा प्लास्टिक फेंकते हैं, और उस गार्बेज में से ही कुछ एनिमल जो है खाना खाते हैं, तो वो उनके लिए भी कितना हार्मफुल है प्लास्टिक. वो डिकम्पोज तो होता नहीं है, उनकी बॉडी में जाएगा तो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड तो होगा नहीं, वो उनकी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होगा वो, और वही फिर उन्हें आगे जाके दिक्कत देता है. ठीक है, सो दीज पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन.
ड्रेन्स, नालियों में भी अगर प्लास्टिक जाता है तो वो क्लॉग हो जाती हैं, ठीक है. समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप्स, बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन द पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस, ठीक है, ऐसे ही फेंक देते हैं. तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक? हमें क्या करना चाहिए, ये हमसे यहाँ पूछा गया है. सो क्या कर सकते हैं हम? अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. मेक यूज़ ऑफ यूज़ ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग. हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए और ऐसी बैग्स जो पेपर बैग्स आजकल अवेलेबल होती हैं, कॉटन की बैग्स अवेलेबल होती हैं, जूट बैग्स अवेलेबल होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately. ऐसा वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल है, इजीली डिकम्पोज हो जाता है, उसे अलग रखना चाहिए और जो नहीं होगा उसे अलग रखना चाहिए. अभी आपने देखा होगा कचरा गाड़ी जो आती है वो हमसे अलग अलग कचरा कलेक्ट कराती है. मीन्स सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग. सूखा कचरा क्या होता है? समटाइम्स इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, वाइल जो गीला कचरा है दैट इज़ डिग्रेडेबल. तो जब हम उसे अलग अलग करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग होती है और वो फर्दर यूज़ के लिए हमें हेल्पफुल होता है. सो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट. क्या होता है, क्योंकि प्लास्टिक को डिग्रेड तो वो हो नहीं सकता है, तो इसलिए जो प्लास्टिक हमने अभी तक यूज़ किया है उसी को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम नया प्लास्टिक खरीदें. तो नया खरीदने की जगह हम उसी को जो है यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट. मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. जो थर्मोप्लास्टिक होता है, जो हीट देने से कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, वो प्लास्टिक से हम रिसाइकल कर सकते हैं उस प्लास्टिक को यूज़ करके. हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड. उसमें कलर्स डाल के उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम. सो दिस लिमिट इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है, इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो कलर्ड कंटेनर्स होते हैं इसमें हम फिर क्या कर फूड नहीं रख सकते हैं. दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम विद दैट. सो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल. हमें अगर इंडिया का रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है किसी भी कंट्री का, तो हमें ये 5R जो प्रिंसिपल है इसको हमें ध्यान रखना है. और वो क्या है 5R प्रिंसिपल? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़. क्या कर सकते हैं हम? रिड्यूस, हम प्लास्टिक को कम कर सकते हैं, ठीक है, उसका यूज़ जो है कम कर सकते हैं. उसको रीयूज़ कर सकते हैं, वही प्लास्टिक जो हमने पहले यूज़ किया उसी को बार बार हम यूज़ कर सकते हैं. फिर उसी को रिसाइकल कर सकते हैं. थर्मोप्लास्टिक है तो वो इजीली रिसाइकल हो जाएगा, उससे हम कुछ नई चीज़ बना लेंगे बजाय नया प्लास्टिक ख़रीदने के. फिर रिकवर कर सकते हैं, उसको ना ख़रीद के थोड़ा सा इन्वायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं. और रिफ्यूज़, और कम्प्लीटली रिफ्यूज़ ही करना है, हमें ख़रीदना ही नहीं है प्लास्टिक. सो दिस इज़ द 5R प्रिंसिपल. ठीक है, सो डेवलप हैबिट विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. हमें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. वी हैव सीन हियर द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मेजर टाइप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर दैट इज़ प्लास्टिक, यूजेस ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ beneficial or not to us. This is what we have seen in this chapter. So this is all about the chapter. You can go through this chapter, read that once, twice, whatever you want, and you can ask me doubts, whatever doubts you have anytime. Okay, and do the homeworks what I have suggested to you to do in your notebooks, and you can ask doubts too. Okay, this is all about today. Thank you and have a nice day.